Hello everyone. So welcome to another session. इस सेशन में we will talk about foreign investment in India. Uh, as far as prelims is concerned, this is a very important topic. कि what are the different avenues through which the investors or foreign investors can invest in India? किस किस तरीके से किस किस ways से foreign investors India में invest कर सकते हैं? Now let us see. So, as you all know that India is an open economy, so India has a transaction with rest of the world, and rest of the world, or such as foreign investors, they are allowed to invest in India, and they can do so through different routes, different methods के through foreign investors are allowed to invest in India. Different avenues. तो वो different avenues क्या क्या है? For example, foreign direct investment in India, foreign portfolio investment in India and foreign venture capital investors. अगर आप foreign direct की बात करें, direct investment, no different ways of foreign direct investment. Similarly, जब आप foreign portfolio investors की बात कर रहे हैं, you are trying to invest in no unlisted securities, debt instrument, जहां पे आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की भी बात करते हैं. And similarly, foreign venture capital investors which are allowed to invest in India. So different avenues है, different methods है through which no foreign investors can invest in India. For example, जैसे मसाला बॉन्ड की भी बात करेंगे. This is also one of the ways in which foreign investors can invest in India. ठीक है? तो let us see these things one by one. सबसे पहले we'll talk about foreign direct investment. ये क्या होता है? तो when you're talking about foreign direct investment, so foreign investors is allowed to invest in Indian companies. All right. अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करेंगे, इंडियन कंपनीज, ऑलराइट, देयर कैन बी इंडियन कंपनीज. सो इंडियन कंपनीज कैन बी लिस्टेड, जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होंगी, और अनलिस्टेड विच आर स्टिल नॉट लिस्टेड ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है? तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके इन्वेस्टमेंट को कब एफडीआई करेंगे? जब उनका इन्वेस्टमेंट जो है लिस्टेड कंपनीज में ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% है. आप किसी भी इंडियन की जो लिस्टेड कंपनीज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% है उस लिस्टेड इंडियन कंपनीज में, दैट इज अ वन थिंग. तो it will be called as FDI. It will be called as FDI. So this is one way FDI can come. दूसरा जो हम बात करते हैं कि अदर वेज क्या है, तो किसी भी अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ऑलराइट, एनी इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनी, all right, any investment in unlisted companies through capital instrument by the foreign investors, so that will be labeled as FDI. That will be labeled as FDI. So listed companies में अगर उनका investment greater than 10% है, या unlisted companies में any investment by foreign investors through capital instruments, तो वो उन दोनों चीजों को हम बोलेंगे कि हाँ एफडीआई कर रहे हैं. ऑलराइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर डूइंग एफडीआई इन इंडिया. ऑलराइट, तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को बोलेंगे कि दिस इज कमिंग एज एन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है. रेगुलेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड इन इंडिया, तो देयर आर रेगुलेटर्स एंड देयर आर रेगुलेशंस. ठीक है? तो जो प्रिंसिपल रेगुलेशंस है जो रेगुलेट करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, उनमें फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. जो मेन रेगुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, उन सब सारी चीजों को कवर करता है.
एंड डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं इसके अंदर. फॉर एग्जांपल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 and the foreign exchange management mode of payment and reporting of non-debt instruments regulation of 2019. तो डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस हैं जो कि टाइम के साथ साथ अमेंड होते हैं या अपडेट होते हैं. Similarly, another important is that consolidated foreign direct investment policy of 2020, जिसको किसने इशू किया था? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, which is under the मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो ये दो मेन रूल्स और पॉलिसीज कह सकते हैं विच गवर्न द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. ठीक है. और यहाँ पे अगर रेगुलेटर्स की बात करें तो जो एफडीआई पॉलिसी है, जो प्राइमरी रेगुलेटर है इंडिया में टू ओवरसी द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. तो ये जो एजेंसी है दैट इज द प्राइमरी रेगुलेटर, नोडल बॉडी यही है कि आप देखोगे कि एफडीआई कैसे हो रही है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो डिफरेंट रूल्स देखती है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी सेक्टोरल कैप है उस वो उतने तक है कि नहीं है, ऑल दोज थिंग्स ये भी देखता है. तो ये भी एक अदर मेजर रेगुलेटर है इन केस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. अनदर इज कि जब हम एफडीआई की बात करते हैं, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिसको हम एफडीआई कह रहे हैं, वो आ कैसे सकता है? तो ये तीन तरीके से आ सकता है. वन इज थ्रू इक्विटी, दूसरा है थ्रू री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड तीसरा है अदर कैपिटल्स. तो इक्विटी कैपिटल के थ्रू आ सकता है. फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन एक्वायर इक्विटी कैपिटल इन द लिस्टेड कंपनीज, जैसे इक्विटी शेयर्स कर लिए, ऑलराइट, फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ले लिए, देन फुल्ली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए. तो ये एक इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो विच इज ग्रेटर देन 10%, वो एक तरीके से आपका एफडीआई हो रहा है. अनदर जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग्स की, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. ठीक है. तो आपका प्रॉफिट हुआ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का जो प्रॉफिट हो रहा है एंड जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो, उसका डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ एफडीआई इन द कंट्री. And another is other capital, which indicates the intercompany debt transaction of FDI entities. So these are the three major ways in which FDI can come to the country. ठीक है. एंट्री रूट्स की बात करें कि एफडीआई इंडिया में आता कैसे है, तो टू मेथड्स हैं, टू रूट्स है जिसके तहत एफडीआई कम्स इनटू द कंट्री. फर्स्ट इज ऑटोमेटिक रूट and second is government approval route. Automatic route, as the name suggest, जो foreign investment कर रहे हैं उसके लिए prior approval, alright, prior approval की जरूरत नहीं पड़ती है from the central government. So that is called as automatic route. जो government route है या government approval route है, उसमें आपको करने से पहले prior government approval की जरूरत पड़ती है. प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. तो ऑटोमेटिक रूट होता है एंड गवर्नमेंट रूट होता है. ऑटोमेटिक रूट में नो प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, बट गवर्नमेंट रूट में आपको प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड विथ एफडीआई की किन किन सेक्टर्स में ये प्रोहिबिटेड है. ऑलराइट, किन किन सेक्टर्स में ये प्रोहिबिटेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है. सो जैसे लॉटरी बिजनेस हो गया, उसमें ये प्रोहिबिटेड है. गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोज, उसमें भी प्रोहिबिटेड है. चिट फंड्स, निधि कंपनीज, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, नो रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज, इन सारी जगह ये प्रोहिबिटेड है. मैन्युफैक्चरिंग किसका कर रहे हैं? सिगार का कर रहे हैं, सीरूट का कर रहे हैं, सिगेरियस का, सिगरेट्स का, टोबैको या टोबैको सब्स्टिट्यूट्स का कर रहे हैं, इन सारी जगह ये है. एंड देन जहां पे सेक्टर्स या एक्टिविटीज विच इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, वहां ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी हो गया, हमारा रेलवे का जो ऑपरेशंस हो गया, विच इज स्टिल नॉट ओपन टू
प्राइवेट सेक्टर, तो वहां पे भी आप एफडीआई नहीं कर सकते। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो सम सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। ठीक है। तो नाउ इफ व्हेन यू सी फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन दिस टेबल की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया, राइट, तो वो कैसे कैसे हो सकता है, जो ग्रॉस इनफ्लोज हो रहा है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वन मेथड इज कि इक्विटी में फ्लो हो रहा है, अनदर मेथड इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स है, एंड थर्ड मेथड इज अदर कैपिटल है। तो ये ग्रॉस इनफ्लोज जो आ रहा है कमिंग टू इंडिया, एफडीआई टूवर्ड्स इंडिया, एफडीआई टू इंडिया, जो ग्रॉस इनफ्लोज है दैट इज टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, ये भी एक हो सकता है कि जो इंडियन एंटिटीज हैं दे आर डूइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, राइट, तो वो भी डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर सकती हैं, राइट। इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, अदर कैपिटल, रिपैट्रिएशन और डिस इन्वेस्टमेंट, उन सारी चीजों की तरह कर सकती हैं। तो यही हम जब नेट नो नेट फॉरेन, यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका जीडीआर एडीआर आ जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑफशोर फंड्स एंड अदर्स की है, पार्टिसिपेटरी नोट वगैरह की बात कर रहे हैं, एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, राइट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडियंस करते हैं इन द अदर कंट्रीज, राइट, वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो जैसे आप एक एक वर्ड यूज होता है नेट एफडीआई, नेट एफडीआई, राइट, तो यहाँ पे नेट एफडीआई क्या हो जाएगा, एफडीआई टूवर्ड्स इंडिया, राइट, विच इज बीइंग डन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंड एफडीआई डन बाय द इंडियंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये नेट एफडीआई हो जाएगा, जो नेट पैसा आ रहा है, राइट। तो एफडीआई डन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया और इनकमिंग एफडीआई माइनस आउटगोइंग एफडीआई, एफडीआई डन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय द इंडियंस, दैट विल बी नेट एफडीआई, दैट विल बी नेट एफडीआई। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कई बार डिफरेंट कंट्रीज वाइज कंट्री स्पेसिफिक भी पूछ लेता है। सो इफ यू सी नो हमारा जो टोटल एफडीआई है विच इज दीज आर द डेटा रिलीज बाय द आरबीआई, तो वहां से है ये। तो डिफरेंट एफडीआई का इनफ्लो क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री वाइज इनफ्लो देखिए तो सिंगापुर से ही सबसे ज्यादा हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से अगर आप सेक्टर वाइज इनफ्लो भी देख रहे हैं तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफरेंट सर्विसेज सेक्टर में जो हम बात कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर मेजर एफडीआई इन इंडिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट इफ यू सी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो सिमिलरली वी हैव सीन कि जैसे इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज इट मे बी लिस्टेड एंड इट मे बी अनलिस्टेड, राइट, एंड यहाँ पे इफ देयर इज फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो जब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दैट इज इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द लिस्टेड कंपनीज, in the listed companies, and that investment is less than 10%, right? 10% of their equity shares वो less than 10% होती है, then we call that investment as foreign portfolio investment, foreign portfolio investment। ठीक है। तो 2014 में कंसोलिडेट करके दीज टू वर्ड्स को कंसोलिडेट करके जो न्यू टर्म बनाया गया था वो बनाया गया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट कंप्राइजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये दोनों को इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके 2014 में सेबी की जो गाइडलाइन आई थी उससे हम न्यू वर्ड था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंप्राइजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो देन अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें, जैसे हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा था, यहाँ पे अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द रेगुलेटरी थिंग्स।
तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ये ध्यान रखेंगे सेबी। और सेबी की जो गाइडलाइन है, सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2019, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सेबी गाइड करता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट ऑल्सो ओवरसीज की एफपीआई इनफ्लोज या एफपीआई आउटफ्लोज जो हो रहा है, ये ओवरसी करता है अंडर विच एक्ट, फेमा 99 एक्ट, ठीक है। अनदर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया थ्रू एफपीआई रूट, उनको प्रायर एसबीआई से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद ही वो इंडिया में एफपीआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक चीज आप ध्यान रखोगे कि दोज एनी एंटिटी हु वांट्स टू इन्वेस्ट in foreign portfolio investment in India, they need a prior license, prior registration with SEBI। उनको सारा अपना केवाईसी नॉर्म्स वगैरह जो भी फीस होती है वो सारी उनको देनी पड़ती है थ्रू SEBI, ठीक है। देन when you talk about different categories of foreign portfolio investment, तो यहाँ क्या होता है, तो टू categories or three categories are there. तो category one is usually low risk and highly regulated investors हो गए। तो जो कैटेगरी वन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, जो हाईली रेगुलेटेड इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स हो गए, इंटरनेशनल एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पेंशंस एंड यूनिवर्सिटी फंड्स हो गए, तो दे आर हाईली रेगुलेटेड। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। तो जो हाईली रेगुलेटेड है, दे आर कॉल्ड एज कैटेगरी वन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। कैटेगरी टू में क्या आता है, विच आर नॉट एज हाईली रेगुलेटेड एज कैटेगरी वन, जो कैटेगरी वन में नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडोमेंट फाउंडेशंस एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट बॉडीज, फैमिली ऑफिसेज जो बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन लाइफ स्पेस रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे लोग कैटेगरी टू में आते हैं। कैटेगरी थ्री की बात करें तो बेसिकली दीज आर प्राइमरी अनरेगुलेटेड एंटिटीज लाइक कॉर्पोरेट बॉडी, फाउंडेशन, ट्रस्ट दैट डू नॉट मीट कैटेगरी वन और कैटेगरी टू क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री। डिफरेंट परमिटेड एवेन्यूज जहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दे कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, ऑलराइट, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं गिवन द फैक्ट दैट लेस देन 10% होना चाहिए। कोई कंपनी आईपीओ निकाल रही है, कोई कंपनी फॉलो ऑन ऑफर्स निकाल रही है, वहां पे भी ये कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स है, वहां पे भी कर सकते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, वहां पे भी कर सकते हैं। डिपॉजिटरी रिसीट है, नो दे कैन इन्वेस्ट इन एडीआर, जीडीआर एटसेट्रा, वहां पे भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स है, वहां पे भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट एवेन्यूज है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड इक्विटी एंड रिलेटेड सिक्योरिटीज एज वेल एज डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज, दोनों जगह वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्टेड शेयर्स और टू बी लिस्टेड शेयर, जैसे आईपीओ वगैरह आने वाला है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हो गया, रीट्स वगैरह हो गया, इनवीट्स हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, यहाँ पे भी ये दे कैन इन्वेस्ट, ऑलराइट। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जिसको पार्टिसिपेटरी नोट भी बोलते हैं, वहां पे कर सकते हैं। सिमिलरली डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, डेटेड सिक्योरिटीज होता है, ट्रेजरी बिल होता है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, कॉमर्शियल पेपर्स है, राइट, तो वो म्यूचुअल फंड्स है, सारी जगह दे कैन डू। म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, मसाला बॉन्ड्स वगैरह जो हैं, नो दे कैन इन्वेस्ट। यूनिट्स इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इन सारी जगह डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय रीट्स एंड इनविट्स। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज जहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इन्वेस्टमेंट बीइंग एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। If you talk about the comparison between foreign direct investment and foreign portfolio investment, तो FDI में क्या होता है, if you see the investment is strategic, investment is greater than 10%,
तो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वहां पे स्टेबल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। व्हेन यू सी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूजली टू अर्न क्विक मनी, एंड एज सुन एज वहां पे इकोनॉमी में कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो वो अपने पैसे लेके जा सकते हैं। दैट इज वाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ऑफन टर्म्ड एज हॉट मनी, कि अगर उस इकोनॉमी में कोई भी दिक्कत आई, कोई भी ऐसा इशू आया जिससे उनके जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है डिफरेंट एवेन्यूज में, इक्विटी या डेट में, तो वो तुरंत अपने पैसे लेके चले जाते हैं एज सुन एज एनीथिंग हैपेंस देयर इकोनॉमी में जो डिफिकल्टीज हो रही है, तो वो अपना पैसा तुरंत लेके चले जाते हैं। तो मोस्टली जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है यूजली शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है। अगर हम एफपीआई की बात कर रहे हैं, यहीं पे अगर एफडीआई की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ग्रेटर इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रेटर देन 10% होता है, स्टेबल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ड्यूरेबल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एंड यूजली दो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। क्योंकि यहाँ पर 10% एंड अबव का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स होंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंपनी, बिकॉज दे वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट्स सो दैट दे कैन टेक बैक मोर डिविडेंड्स, ठीक है, तो मोर प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से, बट जब आप एफपीआई की बात करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व, उन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है इन शेयर्स और इन डेट, और देखते रहते हैं कि जैसे ही मेरे आई एम अर्निंग गुड प्रॉफिट्स आई मे टेक आउट दैट मनी। तो वहां पे खाली दे ओनली ब्रिंग अबाउट फाइनेंशियल कैपिटल। जब आप एफडीआई की बात कर रहे हो तो यहाँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह भी आती है, ग्लोबल मैनेजरियल स्किल का भी ट्रांसफर होता है। तो ये सारी चीजें हाँ नो एफडीआई एंड एफपीआई को थोड़ा सा डिफरेंस लाती हैं। राइट, तो एग्जिट एंट्री एंड एग्जिट की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली एफडीआई लाना और ले जाना, राइट, एंट्री एंड एग्जिट इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो थोड़ा लाना भी इजियर है और सडनली ले जाना भी आसान है। राइट, सो अनदर एवेन्यूज जो हमने बोला कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। राइट, तो यहाँ पे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? बेसिकली फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होगा, राइट, जो इनकॉर्पोरेट हो गया होगा विच इज एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, वहां पे उन्होंने अपना फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स बना लिया है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सो दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, इन सारी जगह फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2000. So these are some of the things related with foreign venture capital investment. Alright. So this was all related with the foreign investment in India, which is a very important theme related with the prelims. Alright. So thank you everyone, and I will see you in the next video.